Namaskar. We are here today to pay our tribute to Padma Vibhushan Pandit Chanulal Mishra ji, my guru, who passed away recently on the 2nd of October. During his illustrious life, Panditji's contributions to the world of Hindustani classical music have been unparalleled. He was the globally celebrated exponent of Purab Ang. Panditji's lifetime spanned some of the most important moments in the Indian nation's history. He was born in pre-independence India in 1936 in Hariharpur in the Azamgarh district of Uttar Pradesh to Pandit Badri Prasad Mishra ji. He first learnt music with his father. He was then educated by Ustad Abdul Ghani Khan Sahib of the Kirana Gharana and then by the great Thakur Jaidev Singh ji. Panditji's late wife, Manorma ji, was the daughter of one of the greatest tabla exponents, Pandit Anokhe Lal ji, and she taught the craft to their son, Pandit Ram Kumar ji, who is here with us today. This talim from the teachers of different faiths and regions perhaps conditioned Panditji to be sensitive to the musical tastes and practices of people across barriers of language, caste, regions, and other identifications. Panditji's music was universal in its address, and he became a rare figure who could be accessed and understood by all. It was Devi Foundation's greatest privilege to be able to record his music and bring it to the world from 2002 onwards in 10 different albums. These were Anjali, Sundarkand in 4 volumes, Shiv Vivah, Holi Ke Rang, Ram Rag, Kabir, Krishna Madhav, Purvaiya, Ram Rang in 2 volumes, and Chalisa, which includes the Hanuman Chalisa. Besides these, the foundation has also recorded 6 music albums under the title of Rasan Piya of the centenarian great master Padma Bhushan Ustad Abdul Rashid Khan Sahib. The foundation is also running a school from 2005 onwards at our ancestral village home in Sarai Harku, district Jaunpur in Uttar Pradesh. We're also engaged with the visual arts through the online global resource and archive, Devi Foundation Critical Collective. My personal memories of Panditji go back more than 2 decades, when for successive summers over several years, my father took me to learn music from him at his home in Varanasi, and thereafter he came several times to our home in Delhi. Long lessons in the nuances of Malkons or Jai Javanti khayals and various forms of thumri were punctuated with much food, laughter, and conversations. And his favorite advice to me used to be, "Pehle khana, phir gana." Like me, his many students today are today bereft of the figure who shared with him the beauty of the world of Hindustani classical music, which transformed their lives. I'd like to first invite my father, Sri J.S. Sinha, to share his recollections and reflections on his association with Panditji, as he spent much time with him, recording his various musical compositions. Over to you, Papa. थैंक यू सूर्या। पंडित जी से हम लोगों का 25 सालों से ज़्यादा का परिचय रहा, साथ रहा, और इन 25 सालों में बहुत समय हमने उनके साथ बिताया, यहाँ पे बनारस में और अलग अलग जगहों पे। हम लोगों ने करीब 10 एल्बम की रिकॉर्डिंग अलग अलग समय पे की। 2002 से शुरू हुआ और रिकॉर्डिंग जब बात हो रही तो एक आपसे साझा करना चाहता हूँ, एक संस्मरण है। हम लोग पंडित जी का एक होली का एल्बम बन रहा था,
सारे कंपोजिशंस उसमें बन गए और बनने के बाद वो एल्बम की एडिटिंग वगैरह चल रही थी। तो हमारे एक बड़े भाई के तरीके से हैं शिवपूजन जी, हम लोग उनको चट्टो बाबा कह के भी बुलाते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग उनको जानते हैं, मिलते हैं। वो 91 ईयर्स के हैं, हो गए हैं। तो वो हमारे दफ्तर में आए, तो मैंने उनसे कहा कि ये एल्बम बना है, सुनाई, देखिए कैसा है। और वो संस्कृति और साहित्य के बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। तो वैसे भी उनसे सब चर्चा होती रहती थी कि एल्बम ये बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, रामचरितमानस के बारे में, रामायण का, और भी सारी चीज़ें, और कुछ न कुछ वो बहुत अच्छी चीज़ें बताते थे। हनुमान चालीसा के बारे में सब बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने पूरा एल्बम सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि पंडित जी ने गाया तो बहुत अच्छा है। पंडित जी भी उनको जानते थे, लेकिन इसमें शिव की होली तो है नहीं। तो अब उसके बिना ये एल्बम कैसे पूरा माना जाए। तो मैंने फिर पंडित जी को फ़ोन किया, बनारस में थे वो। उनसे कहा कि चट्टो बाबा बैठे हैं और कह रहे हैं कि इसमें शिव की होली आपने गाई नहीं। अब पंडित जी ने कहा कि शिव की होली तो हमारे पास कोई रचना है नहीं, और मैंने किसी से सुनी भी नहीं कि शिव की होली, और हमें इसका। तो मैंने कहा कि चट्टो बाबा बैठे हुए हैं, मैं फ़ोन दे रहा हूँ, आप इन्हीं को इनसे बात कीजिए। तो चट्टो बाबा को फ़ोन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं एक रचना आपको देता हूँ, जिसकी पहली लाइन मेरी अपनी है, और बाकी की जो रचना है वो बनारस से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव है मंगल जी, वो वहाँ पे एक स्कूल है, उसके टीचर हैं। और उन दिनों आज से 20-25 साल पहले वो 70-72 साल के थे। बाकी रचना उनकी है। तो इसको आप देख लीजिए। तो उस कंपोजिशन की पहली लाइन जो थी वो थी, खेले मसाने में होली दिगंबर। बाकी रचना वो उनकी थी, मंगल जी की थी। तो पंडित जी से हमने कहा कि आपने देख लिया? बोले हाँ देख लिया, लेकिन अब इसको किस राग में गाया जाए। तो हमने कहा राग के बारे में तो हम लोगों को कुछ पता है नहीं। चट्टो बाबा ने भी कहा इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता है, ये तो आप ही तय कीजिए कि कैसे गाना है, क्या करना है। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, 1-2 दिन का समय दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो 2 दिन के बाद हमको फ़ोन किया, कहने लगे कि ये 2003-4 की ऐसी बात है। कहने लगे कि इसको उसी अंदाज में गाया जाए जैसे बच्चन जी ने बागबान में होली गाई है, होली खेला रघुवीरा आवध में। तो हमने कहा ठीक है। अब बच्चन जी ने उनका पहला एल्बम, आप सब लोगों को पता ही है, पहला एल्बम 2002 में अंजलि जो देवी फाउंडेशन का निकला था, उसका विमोचन बम्बई में किया था, इस्कॉन मंदिर में। दिल्ली में उसको शीला दीक्षित जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उन्होंने किया था। प्रसन्ना जी, राम कुमार जी, सब बहुत लोग बैठे हैं। रूपक चौधरी जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सब लोग हैं, सब लोग वहाँ पे भी थे। तो हो गया कि ठीक है, अब इसकी अलग से रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि बाकी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। उनको फिर दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में प्रसन्ना जी वगैरह सब लोग इकट्ठे हुए, पूरे दिन की रिकॉर्डिंग हुई। और उसमें एक जो राम कुमार जी ने बड़ी उसमें काम किया उस समय, कि वो डमरू की आवाज़ ठीक आ तो रही थी, लेकिन वो साउंड का काफ़ी, तो रूपक ने ये थे स्टूडियो में, इन्होंने भी काफ़ी देखा ओखा उसे। फिर दिन भर की रिकॉर्डिंग उसकी हुई, कई बार रीटेक हुआ, और फिर वो जाके एल्बम बना। और उसके बाद फिर देखिए वो आज पूरे विश्व में जो पंडित जी का वो शिव की होली है, वो
ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने देखा होगा सारे, जब पंडित जी के बारे में उनकी मृत्यु के बाद जब सारे अखबारों ने, नेशनल मीडिया ने, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी के सारे अखबारों ने, सब ने उस होली का जिक्र अपने तरीके से ज़रूर किया है। तो देखिए उसके बाद वो पूरे दुनिया में शिव की होली हो गई और इस तरीके से रहा। तो मैंने सोचा ये आप लोगों से साझा करूं कि कभी कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। और वो अब पंडित जी बड़े विलक्षण तरीके के गायक थे। उनके में ही वॉज अ ग्रेट मास्टर टीचर। उनका क्या था कि किसी भी हॉल में आप लोगों ने देखा होगा, बैठते थे तो जो श्रोता लोग थे, जो ऑडियंस रहती थी, उसके साथ कम्युनिकेट करते थे, संवाद करते थे, और सारी लाइटें हॉल की जलवा देते थे। कहते थे कि लाइट ऑन कर दीजिए, मैं सबको देखना चाहता हूँ और सबसे बात करना चाहता हूँ। तो उस तरीके का उनका था। प्रोग्राम शुरू होने के पहले वो अक्सर, साजन जी बैठे हैं, अक्सर ये ज़रूर कहते थे कि देखिए ये स्टेज नहीं है, ये मंदिर है। जहाँ भी स्वर और लय से गायन हो वो वहाँ पे साक्षात ईश्वर विराजमान रहते हैं। क्यों राम कुमार जी? और उसी भाव और विश्वास और उसी डेडिकेशन से वो अपना पूरा प्रोग्राम करते थे। वो प्रोग्राम के बीच में बताते भी थे कि वो क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, किस लिए गा रहे हैं, सारा सब एक्सप्लेन करते रहते थे पूरा। तो इस हिसाब से वो बहुत बड़े टीचर, उस तरीके से, उस अथॉरिटी से स्टेज में बैठ के लोगों को समझाना, बताना, बहुत कम लोगों के, हमने बहुत कम लोगों को देखा। राजन साजन जी भी इसी तरीके से करते हैं कि क्या राग है, अब हाँ क्या राग है, कैसे गाया जाए, क्यों इस अगर शाम का राग है तो शाम के ये गा रहे हैं तो शाम का समय है तो ये गाना है, सुबह का समय है तो ये गाना है। तो इस तरीके से उनका रहता था। देवी फाउंडेशन के पास जो भी पंडित जी का संगीत है 10 एल्बम का, वो एक धरोहर है। हम लोगों को ये अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ कर सके, और वो सबके लिए हर समय उपलब्ध है। अब इस समय देखिए राम कुमार जी शुरू से हमारे साथ रहे, प्रसन्ना जी, राम कुमार जी, महमूद धौलपुरी, विश्वनाथ जी, सब लोग 2002 से सारी रिकॉर्डिंग में सब जगह जहाँ भी हुआ सब लोग साथ रहे और सबका बहुत सहयोग रहा और बड़ा अच्छा रहा। पंडित जी को हम लोग आज याद कर रहे हैं। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Papa, for that wonderful tribute. I'd like to now invite a special person, Shri Abhinav Chaturvedi ji, best known for his role in several important films and TV serials. Hum Log, something that all of us are familiar with. He was blessed by Pandit ji, and today he has a wonderful poem in his memory. बढ़ती भी रहे उम्र भी शोहरत भी मेरी, बढ़ती भी रहे उम्र भी शोहरत भी मेरी, मगर मैं अपने बुजुर्गों से बड़ा हो नहीं सकता। देखिए सज्जनों, ऐसे व्यक्तित्व पृथ्वी पर एक ही बार आते हैं। मेरे फूफा जी आदरणीय स्वर्गीय राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी अटल जी के क्लासमेट थे। आज मैं अपने श्रद्धा सुमन आप सबकी तरफ से इस कविता के माध्यम से पढ़ रहा हूँ। ये कविता शायद पंडित जी के लिए ही लिखी गई थी कि इसका शीर्षक है झूम झूम जो गाए है। मेरे भीतर बैठा बैठा
झूम झूम जो गाए है वो 33 कोटि देवों का सारा सोम पचाए है। मेरे मन मंदिर के अंदर कोई ऐसी प्रतिमा है, मेरे मन मंदिर के अंदर कोई ऐसी प्रतिमा है, मैं जब जब गाने लगता हूं गीत भजन बन जाए। कांच गली के मैं इस कारण ही नंगे पांव घूमा हूं, कभी कभी इन कांचों से भी गीत महल बन जाए है। मावस ने तो अंधियारे से दिशा दिशा रंग डाली है, अपने भीतर का ध्रुव तारा मुझको राह दिखाए। उस 12 गुलाब की मस्ती का आभारी हूं। पंडित जी वॉज अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी ही कुड कनेक्ट, एज सर ने भी बताया, विद अ यंग जनरेशन। उस 12 गुलाब की मस्ती का आभारी हूं, नागफनी के जंगल में भी आंखों में मुस्काए हैं। कपिल वस्तु का सिंहासन हो, यशोधरा हो, राहुल हो, फिर भी दर्द दीवाना गौतम सन्यासी बन जाए। अंतिम निवेदन है, जब जब कोई कंस बजाता दुंदभियां अन्यायों की, वृंदावन में एक बांसुरी दुगनी धूम मचाए है। जब जब अंबर आग उगलता, जब जब धरती झुलसाती, शाम घटा सा पिता का आंचल माथे पर लहराए है। ये बहुत बड़ी बात है कि श्रुति और स्मृति के देश भारत में हम सब को ये सुअवसर मिला कि हम इतने बड़े बड़े विद्वानों ने जो संकल्प लिए थे, कोठरी से लेकर पद्म विभूषण का सफर, ये स्थूल रूप से हमारे बीच नहीं है लेकिन रहते ज़रूर हैं। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। देवी फाउंडेशन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे फिर आज आपके समक्ष, मैं छोटा सा बस 30 सेकंड्स और लूँगा। जब मुझे पहली बार पंडित जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं भागा सरता विहार से कमानी ऑडिटोरियम पहुँचा। राम भैया हंस रहे हैं। पंडित जी से मैंने आशीर्वाद दिया, बोले तुम हम लोग में आते हो ना, तुम्हारी फिल्म भ्रष्टाचार का गीत मुझे बड़ा पसंद है। और उन्होंने इनको बाद में वो गाकर सुनाया, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते। तो आप देखिए एक फैन, एक जिन्होंने उनके संगीत का अध्ययन करने की शेषा की। पंडित जी बैठे हैं, मुझे उनकी एक बंदिश की एक पंक्ति अगर गाने का अवसर है, मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करता था, हम लोग में मेरा सिलेक्शन ही उसी की वजह से था। उनका एक बंदिश है वो बहुत सुंदर मुझे लगती है, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी अरे सांवरिया। तो वो मेरे हमारे हम लोग ब्रज के हैं तो हम लोगों को ये बहुत बंदिश कर, उनकी सारी वो वैसी, पर उनका सबसे जो था एक फादरली कनेक्ट बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, वो अपने आप को उनके साथ इक्वेट करते थे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। राम भैया आप आएंगे अभी तो दीदी बुलाएंगी। थैंक यू सो मच, प्रणाम। एंड वी शुड सेलिब्रेट हिज म्यूजिक फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। थैंक यू सो मच। Thank you so much for sharing that wonderful tribute and your thoughts. I'd like to now welcome Panditji's son, one of the most foremost leading tabla players in the country, and his grandson, Pandit Ramkumarji and Rahulji, to the stage to offer a musical tribute. Accompanying them on the harmonium is Zakir Dholpuri ji. On the sarangi is Shambhu Sasodia ji. On the santoor is Divyan Srivastav ji. On the violin is Shubham Sarkar ji. Please. नमस्कार। यहाँ बैठे सभी लोग को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा कि जिनके साथ बजाता था आज उनके लिए बजाना पड़ेगा। दादा यही हैं, हम सबके साथ हैं, आप सबके साथ हैं।
वो हमेशा कहते थे कि इंसान मरता है, कलाकार नहीं मरता, कला हमेशा ज़िंदा रहता है। तो आज थोड़ी सी हाजिरी दूंगा मैं, 3 ताल।
ये दिन दिन पंजाब। साउंड का थोड़ा ट्रबल हाइस बढ़ा दीजिए, आ रहा है जा रहा है बोले। एक ऐसी चीज़ बजाने जा रहा हूँ जो घराना से पहले पूरब अंग और पश्चिम अंग हुआ करते थे। तो गरेला है, पहले थोड़ा सा कोशिश करूँगा पूरब अंग, फिर पश्चिम अंग में इसमें जाऊँगा। पश्चिमी
अब धाता तिट्टे धाता तुन्ना, जो कि कोशिश कर रहा हूँ बजाने का। जब हमें तबला सिखाया जाता है तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है। मैं थोड़ी कोशिश करूँगा।
एक दिल्ली का कायदा। बस लास्ट में थोड़ा 3 ताल बजाऊंगा, ज़्यादा बजाने की एक्चुअली हिम्मत नहीं हो रही है, तो इसीलिए 3 ताल बजाऊंगा बैंड में। उसके पहले मैं हल्का आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं स्पेशली लेके आया हूँ। सोचा आप सबको दिखाऊँ, इसलिए मैं लेके आया हूँ। जब दादा 20 साल के थे, जैसा उन्होंने मुझे बताया था, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको सुरमंडल चाहिए था। तो उन्होंने पैसा जमा किया, जब वो 20 साल के थे, मतलब अभी 70 साल का है ये। और लास्ट कॉन्सर्ट जब उनका हुआ, मैं और जाकिर भाई, हम दोनों ही उनके साथ, हमें सौभाग्य मिला उनके साथ संगत करने का, दादा के साथ 2022 में भुवनेश्वर में हुआ था। तो उस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने ये सुरमंडल को मुझे दिया और बोला इसका ध्यान रखना, और जब भी तुमको मेरी याद आएगी इसको छेड़ देना, लगेगा कि मुझे सुनाई दे दिया। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये 70 साल पुराना है, और इसके बीच में जो ओम लिखा है, ये दादा ने अपने हाथों से लिखा था। हमारे घर की चीज़ एक उंगली का नाइन दिन ना बजा के मैं समाप्त करूंगा।
आप सभी लोग आए, मुझे आशीर्वाद दिए। ये मैं देख रहा हूँ दादा ने आज क्या कमाया। Thank you. I know Pandit ji is blessing you from the heavens. Yes, okay. I'd like to invite the CEO of Prasar Bharati, Shri Navneet Sehgal ji, to come and share his thoughts with us. Please. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी आज इस उपस्थिति के लिए विनीत नारायण जी को धन्यवाद दूंगा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे पंडित जी के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला। काफ़ी हम लोगों ने उनके कार्यक्रम कराए। पंडित जी की वो अद्भुत प्रतिभा थी और उनका जो गीत गायन जब शुरू होता था तो वो आपको दूसरे लोग में पहुंचा देते थे। मैंने उनके मसाने में दिगंबर होली मतलब वो सुन के बार बार आदमी को हमको सुनने का वो दिल करता है कि इसे हम सुने और एक अध्यात्म की जो है वो एक सीमा तक पहुँचे। बहुत ही इतने बड़े कलाकार होते हुए भी मैंने उनको पाया कि बहुत ही वो साधारण उनका जीवन था। उनको कई बार जब हम लोगों ने लखनऊ कार्यक्रमों के लिए बुलाया तो बहुत ही मुझे भी ऐसे लगता था कि इतने बड़े कलाकार हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ को सहन करके अपने गाने पे, अपने कार्यक्रम पे विशेष उस पर ध्यान देते थे। और इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनसे क्या हो सकती है और कि उनके परिवार के ही सदस्य ने आज यहाँ तबला वादन उनके स्मृति में किया। मुझे मेरी बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि। और मैं पुनः विनीत नारायण जी का भी और देवी फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बीच में ट्रैवल कर रहा था, मैं बनारस भी नहीं जा पाया, उनके किसी शोक कार्यक्रम में सम्मिलित भी नहीं हो पाया। मुझे आज सम्मिलित होकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर आप लोगों ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। I would now like to invite respected Professor Vishwambar Nath Mishra ji, Mahant of Sankat Mochan Temple, who's among us. He's Professor of Electronics in BHU and descendant of Goswami Tulsidas ji. In fact, it is the renditions of Ramcharitmanas and the Hanuman Chalisa, among others, that Panditji set to tune and became best known for. It is an honor to have Mahanji with us, for his family has for more than a century supported the classical arts in the form of the Drupad Mela, the Sankat Mochan Sangeet Samaroh in Varanasi every year. I have vivid memories of his late father, most respected Professor Veerbhadra Mishra ji, his private lessons with Pandit Chanulal Mishra ji, that I actually had the privilege to attend. There were starlit evenings on the rooftop of the temple, and when Panditji and Maharajji would actually sing into the night, it just now seems like a dream. Mahanji, please come. आप सबको प्रणाम। सन्नूलाल जी को याद करने के लिए आज हम सब यहाँ पर जुटे हैं। हम तो अभी सीधे बनारस से आ रहे हैं, बस कपड़ा चेंज किया आ गए यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था यहाँ आना, सम्मिलित होना उनके में। देखिए, छन्नूलाल जी को हम समझते हैं कि एकेडमिक स्टडी में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कैसे एक साधारण जीवन यापन से कैसे आज इस ऊंचाई तक पहुँचे और उनका कितना संघर्ष रहा है। और हमें पता है हम लोग का एसोसिएशन कहाँ से हुआ कि हमारे फादर का थोड़ा फेमिनिन वॉइस था, तो उसमें कुछ डॉक्टर्स ने, ENT के डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आप स्वर साधना करिए, आपका आवाज़ ठीक हो जाएगा। तो हमने तो ये इनहेरिट कर लिया, हमको ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन उनको अभ्यास करना पड़ा। तो हमारे ग्रैंडफादर जब उन्होंने किसी के साथ शुरू किया, क्या देखो ऐसे ठीक नहीं होगा, मैं तुमको एक आदमी देता हूँ, वो बढ़िया आपका करा देगा। वही छन्नूलाल जी का इंडक्शन हुआ, हमारे ग्रैंडफादर ने किया।
तो हम तो 3-4 पीढ़ी से उनको जानते हैं और हमको लगता है 5 से 10 साल लगा होगा। उसके बाद इतनी बुलंद आवाज़ हो गई उनकी कि बाद में हम लोग भी घर में डरने लगे उनसे। तो ये आवाज़ का ये प्रभाव होता है, वो संगीत से होता है। और डीप क्लासिकल हम समझते हैं कि वो बहुत ही लर्नेड आर्टिस्ट थे, लेकिन पूर्वी अंग पे उन्होंने बड़ा जोर दिया। और हमने श्रोताओं में सुना है कि देखिए हमको संगीत उगीत समझ में नहीं आता, लेकिन छन्नूलाल जी का गाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो मर्म पकड़ के चलते थे ऑडियंस को क्या चाहिए। और उन्होंने हमारे फादर के साथ साथ रामचरितमानस और विनय पत्रिका पे बहुत काम किया, और हम समझते हैं कि उतना बढ़िया किसी ने उसको गाया नहीं। और उसमें हम जय सिन्हा साहब को भी कहेंगे, उन्होंने बहुत मेहनत किया और उन्होंने एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो उसके बाद वो ऐसा प्रमोशन हुआ कि हम समझते हैं कि घर घर में लोग सुबह एक रिचुअल की तरह सुबह बजा देते थे, इतना लाइक करते थे। और आज के जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में खास करके हम देखते हैं बड़े आर्टिस्ट अगर हो जाते हैं तो सबकी निगाहें पैसा पे हो जाती हैं। हम थोड़ा आउटस्पोकन हैं, लेकिन हमको सुनाना भी आज ज़रूरी है। तो इसमें एक चीज़ तो बहुत तय हो गया कि अगर आपको सुरमंडल दिया है तो आपको विद्या भी उन्होंने दिया है, उसको बहुत हिफाजत से लेके चलिए। पैसा तो आपको मिलेगा, वो खर्च भी हो जाएगा। और हम बहुत लोगों की ऐसी दुर्दशा देख रहे हैं, एक से एक परंपराएं जो पैसे के पीछे भागे वो लुप्त भी हो गई। और जो अपने विद्या को पकड़ के रखे रहा, उसका अभ्यास किया। और देखिए ये भी सत्य है कि आप किसी भी संगीत घराने से अगर संबद्ध हैं, 4-5 अगर बच्चे हैं, किसी एक में आपको आशीर्वाद मिलेगा, उसी को उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। और हम तो हर जगह कहते भी हैं कि संगीत आपका चीज़ नहीं है, वो देव प्रदत्त आपका विद्या है, और आप उसको अपने साथ लेके जा भी नहीं सकते हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी है, अगले पीढ़ी को वो ट्रांसफ़र करिए। तो अब इन लड़कों पे वो जिम्मेदारी है, उसको बढ़िया से लेके आगे चले। वो गायक रहे तो वादक भी रहे। हम भी कभी कभी पिता अगर नहीं रहते थे बनारस में तो आ जाते थे, तो हम भी उनके साथ पखाव थोड़ा बजा लेते थे। हम भी वो सब अनुभव हमको है। लेकिन ऐसा सादगी से जीवन जीने वाला, और अगर कायदे से देखें तो संगीत के अलावा उनको किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे साधक थे। तो हम तो राम कुमार जी से और इनके बच्चे से ही कहेंगे कि अपने इस थाती को लेकर आगे बढ़ें। और थोड़ा हमको एक चीज़ खटका कि आप लोग पंजाब दिल्ली पर ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। बनारस खुद अपने आप में इतना रिच ट्रेडिशन है कि आपके पास, बनारस के पास हर चीज़ का जवाब है। और देखिए एक हम एग्जाम्पल देंगे, अगर कोई महिला काजल लिपस्टिक अगर लगा रही है तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई मेल भी उसको लगाए, उससे आपका कैरेक्टर पूरा बदल जाता है। तो आप अपनी चीज़ को लेके चलें, और वो हमारे ख्याल से एकदम पैरेलल होगा। उसको आप स्थापित रखिए, क्योंकि ये आपकी चीज़ है, आपके परंपरा की चीज़ है, तभी आपको लोग याद करेंगे। हम तो बहुत लोगों को देखें, अब जैसे पंडित जसराज जी हैं, अगर उनके शागिर्द अगर पंडित जसराज की तरह गाते हैं तो जसराज जी की तरह, और आपका जो कंपेयर किया जाएगा वो पंडित से किया जाएगा। जब तक आप अपने विद्या को गुरु से सीखिए और अपना इनोवेटिव तरीका अपना अगर जब तक आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, संगीत में आप स्थापित नहीं हो पाएंगे। तो कुछ अपना चीज़ आपका एकदम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और ये ज़रूर लोग कहें कि उस परंपरा से हैं, लेकिन ये इन्होंने अपना डेवलप किया है, और वही आपको पहचान दिलाएगा। तो आज ज़्यादा भाषण देने की बात नहीं है। छन्नू महाराज नो डाउट बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और जिस तरह से गए हैं तो बनारस में तो देखिए 2 ही वोकल में, एक तो पंडित राजन साजन जी और पंडित छन्नूलाल जी, यही 2 एक तरह से आइकॉन थे। और राजन जी भी बहुत अचानक गए। साजन जी ने अपने अगले पीढ़ी के साथ फिर उस जोड़ी को जमा दिया। ये एक ब्यूटी है कि अगले पीढ़ी के साथ आप अगर उसको बढ़िया से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, ये आजकल के समाज में बहुत लैग करता है, लोग करना भी नहीं चाहते हैं। तो और छन्नूलाल जी का तो अपना चीज़ रहा ही है। तो आप लोग इसको लेकर चलिए। फिर हो सकता है कि आपके घर में कोई वोकल का बढ़िया आर्टिस्ट होगा, वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। ये देखिए कहीं लुप्त नहीं होता है, कुछ चीज़ें इमर्ज होती हैं और कुछ सप्रेस होती हैं, लेकिन आगे जेनेटिक उसमें तो आपको वो कैरेक्टर रहेगा, फिर कोई उठा लेगा उसको फिर। तो ये कोई ज़रूरी है कि हर चीज़ आप कर लेंगे, और हर चीज़ का पंडित होना भी ठीक नहीं है। एक चीज़ में आप अभ्यास करिए,
क्योंकि इसमें बहुत ही परिश्रम होता है। एक आर्टिस्ट जो आपके मुंह से वाह निकलता है, उसके पीछे उसका कितना तपस्या होता है, वो जान देता है तो आप एक वाह करते हैं। तो आप इसको करिए, हम सब का आपके ऊपर एक तरह से आशीर्वाद भी रहेगा, एसोसिएशन भी रहेगा, और जितना ज़रूरत होगा हम लोग आपको ज़रूर बढ़ाएंगे। धन्यवाद। There's a very special presentation by the renowned photographer Bandeep Singh ji. Please, Mahanji, there's beautiful portraits of Pandit ji that he has done in the past, and to present to Devi Foundation. Papa. एक छोटा सा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिन्हा साहब ने संगीत के मंदिर की बात करी, तो हम श्रोताओं के पर्सपेक्टिव से हम लोग उस मंदिर में जैसे श्रद्धालुओं की कतार होती है वैसे शामिल होते थे पंडित जी को सुनने, रसअमृत प्राप्त करने, और भीड़ पे हम लोग अपनी एड़ियाँ उठा के पंडित जी को सुनते थे। और पंडित जी उस पुजारी की तरह थे जो अपने आप को और जो अंदर गर्भगृह में जो भाव मूर्ति है उसके दर्शन के लिए दर्शकों के सामने से अपने आप को हटा लेते थे और अपने स्वभाव से, अपनी डिस्क्रिप्शन से वो कपाट खोल देते थे और हम दर्शकों को खुले दर्शन, जो भाव मूर्ति के दर्शन जो हैं, राग की भाव मूर्ति, वो हमें दर्शन प्राप्त होते थे। तो ये जो उनके वहाँ से जो रस मिला, जो उनके वहाँ से भाव प्राप्ति हुई, उस चीज़ के लिए, उस दक्षिणा के लिए, उस दान के लिए एक छोटी सी ट्रिब्यूट, छोटी सी श्रद्धांजलि जो है मेरे लैंग्वेज फ़ोटोज़ की है, उस माध्यम से मैं देवी फाउंडेशन को और उनके परिवार को मैं ये प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये वही स्वर मंडल जिसकी बहुत सुंदर, एकदम नेचुरल लग रहा है। और महाराज जी ने पूरब अंग की बात करी, तो ये क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। ये बनारस में मेरे पिता के लिए मैं क्या ही कह सकता हूँ। शास्त्रीय संगीत हो या उपशास्त्रीय हो या लोक संगीत हो, सभी के वो एक महान विद्वान थे। ऐसे पुरुष को हम युग पुरुष का नाम ज़रूर दे सकते हैं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ देवी फाउंडेशन, हमारे सिन्हा जी चाचा जी का, कि उन्होंने आज ये संध्या आयोजित की, और हमारे महंत जी, उनका बहुत बहुत आभार कि उनका आशीर्वाद हमें मिला और वो बनारस से खास करके इसके लिए आए। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। और जितने भी हमारे दिल्ली के हमारे जितने लोग हम आए हैं, पिताजी के प्रेमी लोग, सभी गुणीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा सा बस हमारे युवा दिव्यांश और शुभम थोड़ी देर के लिए उनको ट्रिब्यूट देंगे, बस चूँकि संगीत से वो, संगीत के साथ उनको अगर जो संगीतांजलि दी जाए और श्रद्धांजलि दी जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं शॉर्ट रूप में। हाँ, इसको ऑफ करा दीजिए। आप सब लोगों को नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम। मैं आदरणीय गुरु जी के लिए, हम दोनों ने ऐसा आदेश हुआ अंकल का कि थोड़ा
सेवा देनी है। तो थोड़ा समय है, हमने चारुकेशी बजाने का सोचा है। बस ये उनके चरणों में है। 3 रचनाएं छोटी छोटी हम लेंगे, एक झपताल में, एक मध्यलय 3 ताल और फिर अतिद्रुत 3 ताल। इसमें जो मध्यलय की रचना है वो हमारे गुरु और बड़े भाई अभय भैया की है, हम प्रयास करेंगे।
आओ जरा स्टेज पे आओ। हाँ तुम जरा भैया इसको ऑन। रूपक जी थोड़ा इसको ऑन करके हल्का सा इसमें रिवर्ब डाल दीजिए। ऊपर आओ, स्टेज पे आओ, इधर आओ। रूपक जी हल्का सा रिवर्ब इसमें, हाँ डाल दिया। थोड़ा सा बजाओ बजाओ बजाओ, इधर बैठो। हाँ बस 3 मिनट और लूँगा मैं पिताजी को याद करते हुए। उनका एक बहुत ही खूबसूरत उनकी कजरी बरसन लागी बदरिया है, 2 लाइन में ज़रूर गाऊँगा। हाँ 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 लगाते रहो यार, सुर भरते रहो बीच बीच में। अच्छा है चलिए यार, तुम तो हाँ पाउडर वही जो भी बजा रहे थे तुम। दूसरा गा लिए, मेरे लिए थोड़ा नीचा है लेकिन ठीक है, तबला मिला है। भर दिया मेरे लिए थोड़ा सा स्केल नीचे है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। चलो ना मध्य में ले ला, थोड़ा ऊंचा पड़ी। चलिए बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम झूम के हो, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया। आयो सावन अति मन भावन, आयो सावन अति मन भावन, घूम घूम के बोलन लागी कोयलिया, घूम घूम के बरसन लागी बदरिया। झूलत हरि संग राधे पलना, झूलत हरि संग राधे पलना, अरे पहिने कुसुम रंग, पहिने कुसुम रंग चुनरिया रे, बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया। गावत राग मलार सजीले, गावत राग मलार सजीले, गावत राग मलार सजीले, गावत राग मलार सजीले, अरे झमकी झुलावे, अरे झमकी झुलावे सुंदरिया रे, बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, लागी बदरिया, लागी बदरिया रूम। बस बहुत बहुत धन्यवाद।
एक लास्ट में एक आखिरी वीडियो उनका जो मेरे लिए उन्होंने बोला था, तो वो लास्ट एक वीडियो आप बजा दीजिए, फिर हम समाप्त करेंगे। थैंक यू। राहुल कुमार मिश्रा हमारा पोता है और बहुत अच्छा तबला बजाता है, होनहार है। अपने पिताजी के साथ, राम कुमार जी के साथ भी कार्यक्रम किया है और बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी कार्यक्रम किया है और विदेश में भी कार्यक्रम किया है और लोग प्रशंसा करते हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि हमारा पोता दिनों दिन आगे बढ़े और अच्छा बजाता है, इस बात की हमको खुशी है और आशीर्वाद देते हैं कि ये प्रसन्न रहे और एक ही पोता है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। Dhanyavad. Thank you for joining us in remembering Panditji. He lives on in spirit through the music that we heard today. Thank you. Namaskar.